ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ। ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਣਾ, ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ। ਜੇ ਲਗ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਸੁਨਹੁ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ। ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ, ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ। ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ, ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੁਗ ਛਤਿ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਜੁਗ ਛਤਿ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ਕਿ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ, ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਸਭ ਖੇਲ ਤਮਾਸਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। आपे वेक करे सब साचा
ਭੰਨ ਕਢਾਏਂਦਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਬੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਦਰੀ ਆਈ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏਂਦਾ। ਬਾਜਹਿ ਬਾਜੇ ਧੁਨ ਆਕਾਰਾ, ਆਪ ਬਜਾਏ ਬਜਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਘਟ ਘਟ ਪੌਣ ਬਹਿ ਇਕ ਰੰਗੀ, ਮਿਲ ਪਵਨ ਸਭ ਬਜਾਏਂਦਾ। ਬਾਜਹਿ ਬਾਜੇ ਧੁਨ ਆਕਾਰਾ, ਆਪ ਬਜਾਏ ਬਜਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਘਟ ਘਟ ਪੌਣ ਵਹਿ ਇਕ ਰੰਗੀ, ਮਿਲ ਪਵਨ ਸਭ ਵਜਾਏਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੰਮਤ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੰਨ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਸੰਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਸੰਮਤ ਸੀ, ਆਹ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ,
ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਕੂਟਰ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਹਵਾਈ ਏਅਰ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁਗ 36 ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ। 36 ਯੁਗ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਕਿ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਕੋਈ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕਰੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲੈਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ, ਸਭ ਖੇਲ ਤਮਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਓੰਕਾਰ,
ओंकार परमेश्वर, जिहदे बाबत गुरबाणी कहती है ओंकार किया उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैर जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। जिहड़ा ओंकार है परमेश्वर, जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच सतगुर की बाणी एके तो शुरू होंदी है। एका एक तो शुरू होंदी है। आप आम तौर पर एक ओंकार नूं इकट्ठा पढ़ जाते, एक ओंकार। असल विच एक वखरा है तो ओंकार जिहड़ा वखरा, ऊड़ा वखरा है। तो एक ओंकार जो पढ़ना ना, बाणी पढ़नी है, एक ओंकार। तो ओंकार जदों गुरमुखी आप पढ़ते हैं, 35 अखर पढ़े जाते हैं पंजाबी दे विच, ते 35 अखर ऊड़े आड़े दे विच, ते जिहड़ा ऊड़े दा मुख गुरु सवारियो वो उत्तों बंद है बिल्कुल। जदों सतगुर ने गुरबाणी लिखी, भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला के पातशाह ने लिखना प्रारंभ किया, जां गुरु नानक पातशाह ने मूल मंत्र लिखना किया, तो सतगुर ने पहला एका पाया, फिर ऊड़ा पा के ऊड़े का जिहड़ा मुख है वह खुला रख दिता। हुण सवाल पैदा होंदा कि सतगुरां कोल स्याही मुक गई सी, ते सतगुर जी ने ये ऊड़े का मुख बंद क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। असल दे विच सतगुर ने सानू समझाया है कि जिहड़ा ओंकार है, इस ओंकार दे विच ही सारा ब्रह्मंड समाया होया है। चाहे वो धरती है, चाहे वो पताल है, चाहे आकाश है, जिन्ने भी आपां ब्रह्मंड देखते हैं, ये सारे ओंकार दे विचों समाया, ते ओंकार दे विचों ही पैदा हुंदा है। ओही पैदा करन वाला, ओही साडी पालना पोषणा करन वाला, ते ओही गुरु सर साडी लैता करन वाला है। इस करके इत्थे पातशाह जी समझाउंदे ने, कहंदे ओंकार सब श्रेष्ठ उपाय। ओंकार परमेश्वर ने, अकाल पुरख ने ये सृष्टि उपशिष्ट उपाय सृष्टि पैदा की। हुण देखो, आम तौर पर हिंदू मत अनुसार ये लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा की। जो आप ईसाइयों का मत पढ़ते हैं, ईसाइयों के मत अनुसार वो लिखते हैं कि जदों परमात्मा ने अपना आत्मा धरती पानी उत्ते डोलिया, तो पानी उत्ते डोलण दे नाल फिर ये जिहड़े आत्मा शरीर बने ने ईसाइयों के मत अनुसार, फिर वो इस तरह परमात्मा ने ये धरती जिहड़ी है ये धरती बनाना की, तो इस तरह फिर उन्हें इस तरह समय की वंड की है कि पहले दिन आ बना, दूजे दिन आ बनाया, तो अखीरले दिन मनुख नर नारी मनुख इस्त्रियाँ बना दिते, तो 7वें दिन फिर उस परमात्मा ने आराम करना किया। ये ईसाई मत दे इस तरह उन्होंने दस रहे हैं। पर गुरु साहिबान जी कहते नहीं, कि वो परमात्मा ने ही ये सारी सृष्टि उही खिण मात्र विच पैदा करदा, ते खिण मात्र दे विच ही इसे ही सृष्टि का वो खात्मा भी वो आप ही करने वाला है। तो सतगुरु जी इत्थे समझाते हैं, कहते भाई हिंदू मत अनुसार लिखा गया कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि पैदा हुई, पर गुरबाणी में सतगुरु जी ने ये वचन कर दिते, कहते ब्रह्मा जी तो खुद उस मालक के हुक्म दे विच अपना जीवन जी रहे हैं। जो आप हिंदू मत के ग्रंथ पढ़ते हैं, हिंदू मत के ग्रंथों मुताबिक लिखिया होया, कहते ने ब्रह्मा जी एक बारी बल भखत नामे जिहड़ा ऋषि सी उहदे कोल गए। 4 मुखां वाला ब्रह्मा, 4 मुख लगे हुए ने, उस ऋषि कोल पहुँचे, तो ब्रह्मा जी नूं मन विच हंकार कि मेरे 4 मुख ने,
मेरे चार मुख ने। अगों जिहड़ा वो रिखी सी, रिखी नूं ये हंकार कि मेरे अगे ब्रह्मा की है, मैं बड़ा तपस्वी हाँ, जिन्नी बंदगी मैं कीती है मेरे अगे तो ब्रह्मा बिल्कुल तुच्छ है। दोनों नूं हंकार होया। ना ऋषि जो ऋषि कोल पहुँचे आ, ऋषि ने आओ भगत नहीं की, जी आया नूं आखना कीता, ते ब्रह्मा जी ने फिर गुरु सर मन च मान किया कि मैं क्यों नूं बुलावां, मेरे को चल के आया पर इन्हें मेरा सत्कार नहीं किया, मैं तो की लेना, मेरे चार मुख ने, ऋषि दे एक मुख है, तो मेरी बरोबरता किवें कर सकता है। हुण दोने ही दोनों के मन विच अहंकार होमै सी। कहते ने परमात्मा ने ऐसी खेड वरताई, बड़ी तेजी का झक्खड़ चलिया, हवा चली, ये उड़ के एक लोक तो दूजे लोक च पहुँचे। जो दूजे लोक में पहुँचे की देखते हैं कि उत्थे जाके ब्रह्मा जी नूं 8 मुखां वाला जिहड़ा ब्रह्मा पैदा प्राप्त होया, जिहदे 8 मूँह ने, 8 मुख हैं। वो अगों उहदे मन विच हंकार कि ये 4 मुखां वाला ब्रह्मा ते मेरे 8 मुख ने, मेरी बरोबरता किवें कर सकता है, मेरी बरोबरता नहीं कर सकता। तो कहते ने उहदे मन विच मान आया, हंकार आया, तो परमेश्वर ने ऐसी खेड वरताई। कहते हवा का एक होर बुला चलिया, हवा आई तेजी दी, तो ये उड़ के 8 मुखां वाला ब्रह्मा उस थां ते पहुँच गया जिथे गुरु 16 मुखां वाला ब्रह्मा सी। ते अगों जिहड़ा 16 मुखां वाला ब्रह्मा सी, उन्हें भी फिर मान किया कि ये 4 मुखां वाला है, ये 8 मुखां वाला है, ये मेरी बरोबरता की करेगा। कहते मान किया, उन्हें भी बुलाना नहीं किया। पर इतिहासकार लिखते हैं, कहते फिर 32 मुखां वाले को पहुँचे, 100 मुखां वाले को पहुँचे, अखीर ते कहते 1000 मुखां वाला ब्रह्मा उहदे लोक में जाके पहुँच गए। जदों 1000 मुखां वाले ब्रह्मे के लोक में जाके पहुँचे, तो ब्रह्मा जी फिर अपने संघासन तो उठे, इन्हां सारियां नूं जी आया आखना कीता। जी आया आख्या, तुसी मेरी लोक च अपने चरण पाए, तुहानूं जी आया नूं सत्कार दिता, सत्कार किया। तो इस तरह इन्हां लोकां दा गुरु सर मान तोड़ना किया, समझाया कि ब्रह्म एक नहीं है, ब्रह्म अनेका हैं। एक ब्रह्मे की गल नहीं है। जे ब्रह्मा सृष्टि नूं पैदा करने वाला हुंदा, फिर सारा फिर ब्रह्म ही परमेश्वर होना सी, ते वो फिर जम्मण मरण दे विच नहीं होना सी। पर ये एक देवता जिन्हें खोज की है। जो संत सिंह मस्कीन जी, पंथ रतन जी, उन्हां दे आपां जदों किताब पढ़ते हैं, उन्हां लिखना कीता, कहते ब्रह्मा जी ने एक खोज की, भाल की कि सृष्टि किवें बन रही है, सृष्टि किवें बन रही है, किवें ये जिन्ने जीव जंतु 4 खाणियां के रूप में अंडिया तो पैदा होने वाले, जेरज तो पैदा होने वाले, पसीने तो पैदा होने वाले, इस तरह मिट्टी तो पैदा होने वाले जंतु इत्यादक ये किवें बनते हैं। ये खोज की ब्रह्मा कि आत्मा जो शरीर चों निकलती है, जीव फिर मर के जाता कित्थे है। कहते इस तरह ये खोज की, ते खोज करन करके दुनिया के लोगों ने उसे ही ब्रह्मे नूं परमेश्वर मन के उस ब्रह्मे की पूजा करन लग पे। ये संत सिंह मस्कीन जी के बच्चों ने, पंथ रतन जी के कहते। फिर इस तरह ही जदों विष्णु की गल करिए, विष्णु जी ने एक खोज की कि परमात्मा ने जीव जंतु पैदा किए, ते जीवां की पालना पोषण किवें कर रहा, रोजी रोटी किवें दे रहा। जदों एक खोज भाल की, लभदे रहे, अखीर ते आश्चर्य हो गए, हैरान हो गए, कोई भेद नहीं प्राप्त कर सके। कहते ने दुनिया के लोगों ने उस विष्णु नूं भगवान मन के विष्णु की पूजा करन लग पे।
ਜਿਹੜਾ ਛਤੀਜਾ ਸੀ शिव जी, 3 देवते हिंदू मत अनुसार ये बड़े मन्ने गए ने। ਜਿਹੜਾ शिव जी सी जिन्हों महादेव को कैद सदा शिव, निरंकार का चिंतन है भिव। तो उन्हें इस गल की खोज की कि मनुख जीव मरण तो जांदा कित्थे है, ये की हो रहा कि जीव जीउंदा ते विचों जिंद निकलती है, जिंद का पता नहीं लगता। कहते उन्हें सारे संसार का भ्रमण करके खोज करना की, ते नतीजे ते ये निकलिया कि जिहड़ी संसार फानी है, अज नहीं तो कल जिहड़ा जीव पैदा होया उन्हें संसार नूं अलविदा कह के जाना है, ये संसार नूं छड्ड के जावेगा। ते कहते उन्हें दुनिया के लोगों नूं मैसेज देण दे लई, सुनेहा देण दे लई अपने शरीर उत्ते भस्म मलना कीती, स्वाह मल ली ते गल विच सप पा लिया। तो सप इस करके पाया ताकि दुनिया, सप कहते काल है कि दुनिया के लोगों नूं मौत चेते रहे कि अज नहीं तो कल इस संसार तो जाना ही है। पर कहते दुनिया के लोगों ने शिव जी नूं भगवान मन के शिव जी की पूजा करन लग पे। इस तरह सतगुरु इत्थे इस तरह फिर मनुखों के मन कहते, पर ये जिन्ने तिन्ने देवते ने असल विच उस परमात्मा के हुक्म विच ये ड्यूटी निभा रहे हैं। इन्हां दे उपर भी किसी का हुक्म चल रहा, वो शक्ति है एक, जिस शक्ति नूं बयान नहीं किया जा सकता। वो शक्ति ऐसी है जिस शक्ति का कोई हद बन्ना ही नहीं है, तो आपां उस शक्ति नूं बयान किवें कर सकांगे। वेद शास्त्र धार्मिक ग्रंथ जिन्ने भी हैं, नेत नेत बण तृण कहत, त्वै सर्व नाम कथा कवन, कर्म नाम वर्णत समाता। एडा बड़ा परमात्मा कलगीधर पातशाह कहते ने सारे उस मालक की सिफत करते, वडियाई करते हैं, पर जे ये सोचा जाए कि उस मालक का आपां नाम लैके बार बार पुकार करके उन्होंने असी दा अंत पा लवांगे, कहते नहीं, तो यह सर्व नाम कथा कम, तेरे बहुत नाम हैं, किन्ने क्यों मारा मैं कथन करना करा, तू समत है जो जे तू बख्शिश करे, श्रेष्ठ मत बख्शिश करे, कहते फिर ही वर्ण हो सकते ने, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता है। तो इस तरह गुरु सभा जिहड़े ये ब्रह्मा सी, जिहड़े 4 मुखां वाला ब्रह्मा ते बल भदक रंग रिखी जिहड़ा मान फिर इस तरह दूर किया। इन्होंने सोचा कि असीं तां एवें मान करी जा रहे हैं, तो सानू पैदा करने वाला कोई होर शक्ति है, वो अखंड जोत है जिहड़ी कदे भी बुझण वाली नहीं है। उसे जोत दे विचों ये सारियां जोतां जगदियां ने, तो उसे जो बुझ जांदियां ते उसे जोत जिहड़ी है जाके उत्थे समा जाती है। एक दीवे दे नाल आपां हज़ारां दीवे बल सकते हैं, लखां दीवे बल जाते हैं। एक जोत जग रही ना, एक जोत नाल लखां दीवे जगदे ने। निरंकार एक जोत है, उन्हें एक तो बहुते रूप होने दे लई जिन्ने भी जीव हैं ये जोतां जगा दित्तियां संसार दे विच, ते समा दे दित्ता नाल जोत जगा के समा। जिवें तेल, जिवें गुरु सर बत्ती च तेल पा दीवे तेल पाया जाता है, बत्ती हुंदी है, जो तेल सड़ जाता तो दीया बुझ जाता है। तो इसे तरह परमात्मा ने साडे शरीर बना के जिंद पा के तो सानू समा दे दिता। किसी नूं 20 साल, किसी नूं 50 साल, किसी नूं 100 साल, 90-80 साल, ये समा दे दिता कि इन्ना समा तेरे कोल है भाई। संसार विच तू गया, संसार में जाके तू इत्थे ये जदों तक तेरी जोत जगदी है उदों तक तेरा जिहदे राही तेरा संसार च प्रकाश होया, तेरा आउणा होया, तो उहदे नाल जुड़ना है सुरती करके। जो सुरती करके जुड़िया रहेगा फिर तेरा संसार च आया सफला होवेगा। पर जो सुरती तै नहीं जोड़ी, उस मालक का शुक्र नहीं किया, धन्नवाद नहीं किया,
फिर सूना मंदिर होई, फिर तेरा अंदर जो सुन्ना हो जाएगा, किसी ने गुरु से गलबात नहीं पुछनी है। तो सतगुरु जी समझाते ने, कहते इस तरह ही जिहड़ा परमात्मा है, परमात्मा वाहिगुरु वो बेअंत है, सर्व कला समर्थ है। उस मालक तो ही सारी जिहड़ी सृष्टि है उपाई ये पैदा हुई। ओंकार सब सृष्ट उपाई, ओंकार जिहड़ा निरंकार है उस तो ही कहते ये सृष्ट उपाय, उन्हें सृष्टि ये उपाई पैदा की। सब खेल तमाशा तेरी वडियाई। कहते ने ये संसार की है, संसार एक कहते तमाशा है। कलगियां वाले पातशाह ने वचन किए ना, आप सतगुर के वचन पढ़ते हैं कि मैं हूँ परम पुरख का दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जग तमाशा। कि जग के तमाशे में मैं देखण आया, मैं उस अकाल पुरख का सेवक हाँ। कलगियां वाले पातशाह के वचन ने। संसार जिहड़ा एक करते दी खेड़ है, जिमें एक बाजीगर बाजी पाउंदा ना, तो दुनिया के लोग तमाशे नूं देखते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो बाजीगर बाजी पाँदा, तो जो बाजी पा के हटदा तो बाद विच सब कुछ समेट लैंदा, इकट्ठा कर लैंदा है। जो वो तमाशा, जो बाजीगर तमाशा दिखाता देखण नूं वो सत प्रतीत हुंदा है, पर है बाजीगर की निगाह विच वो पहलां भी झूठ सी ते हुण भी झूठ है, तो अगे भी झूठ होवेगा। इस तरह परमेश्वर रूपी बाजीगर ने जगत खेड़ एक तमाशा सिरज दिता, तो उहदी निगाह विच संसार अज भी फानी है तो कल भी फानी है, अज भी खत्म होना तो कल भी खत्म होना है। तो ये संसार सदी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि पता नहीं लखां ही आउंदे ने, निता प्रति लखां की तादाद में जीव संसार जन्म लैंदे हन, तो लखां की तादाद दे विच ही जीवां की मौत हुंदी है पूरे संसार विच। हुण जम के आउंदे ने ते मर के जाते कित्थे ने, ये नहीं पता लग रहा। बस जम्मण का तो पता है कि माता पिता संबंध बने आ तो संसार च आउणा हो गया, पर मरण तो बाद जांदा कित्थे है, इहदे बाबत गुरु सवारे अज तक किसी नूं पता नहीं लग्या, ना ही पता लगना है। साडे धार्मिक ग्रंथ जिन्ने भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हैं, तो ये सतगुरु जी कहते हैं कि उस मालक विचों जीव पैदा हुंदा, तो मालक विच जाके ही अभेद हो जाता, लीन हो जाता है। तो हाँ इन्ना जरूर है कि जो जाना पैंदा मालक दे कोल ही, पर सुरती मुताबक अगला शरीर नूं प्राप्त हो जाता है, जिथे सुरती टिकी हुंदी है। ये जिस तरह की सुरती टिकी, जिथे मन टिक गया, अंत वेले सवास टिक गया, तो उहदे मुताबक अगला शरीर उस रूह नूं मिल जाता है। पर जिन्हां ने अपने मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु जपना कीता, जिन्हां दे माँ वाहिगुरु चित आया अखीरले समय, फिर वो वाहिगुरु विच भेद हुंदे ने, फिर वो जम्मण मरण तो रहत हो जाते, वो नहीं फिर गुरु संसार विच आउंदे ने। नहीं संसार का दस्तूर है, गुरबाणी ने फैसला कर दिता। भगत जयदेव साहबान जी का वचन पढ़ते हैं, तलोचन साहबान जी का। भगत जी कहते ने, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। कहते ने सर्प जो बल बल उतरै, जिहदी सुरती अंत वेले कहते माया विच रह गई, तो कहते ये बिल्कुल सच है कि उन्होंने फिर अगला जिहड़ा शरीर है ना, वो सप की जून मिलेगी। हुण जिन्ने भी गुरु सवारे इत्थे आपां देखदे हैं पंछी विचरदे ने, गुरु घर दे आले दुआले कबूतर इत्यादि हन, होर पंछी ने, ये है तो रूहां सारियां परमात्मा दियां दी पैदा कीतियां होईयां ने, शरीर वक्रे वक्रे मिले ने। शरीर जिंदा रूहां उही हुंदियां जिथे अंत वेले साह टिक जाता, उहदे मुताबिक अगला शरीर जीव नूं प्राप्त हो जाता है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਭ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਵੇਖ ਕਰੇ ਸਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਭੰਨ ਕਢਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਆਪੇ ਵੇਖ ਕਰੇ ਸਭ ਸਾਚਾ, ਆਪੇ ਭੰਨ ਕਢਾਏ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੰਨਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਭੰਨਦਾ ਹੈ। ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੱਖਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਖਤਮ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਹਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਭੰਨ ਕਢਾਏਂਦਾ, ਤੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਦਰੱਖਤ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਾਂਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰੱਖਤ ਇਹ ਬਿੰਗਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰੇ ਛਾਂਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਦਰੀ ਆਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਜੀ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਖੂ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
पारखू निगाह वाले, वो फिर गुरु दे लड़ लगते हैं। गुरु साहबान जी फिर उन्होंने शब्द ते सुरती का समेल बख्शिश करते हैं। जदों फिर सुरती केंद्रित होंदी है, बिल्कुल एकमिक गुरु साहबान के चरणों में खुभ जाता मन, उस तो बाद फिर पूरे गुरु की बख्शी हुई दृष्टि दे नाल, पूरे गुरु की बख्शी हुई निगाह दे नाल फिर वो जीव देखदा, फिर उन्होंने फिर परमेश्वर रूपी बाजीगर नज़र आता है। पर गल ये है जदों फिर पूरे गुरु की बख्शिश होंदी ना, तो उदों फिर ये नहीं देखा जाता कि उदों ये नेत्र अपने नेत्र बंद हो जाते हैं, जोड़े संसारी नेत्र जिन्होंने आप सारे संसार में देखते हैं, वो नेत्र बंद होंगे ने तो अंतरीव नेत्र उन्होंने खुल जाते हैं, जिन्होंने आप ज्ञान रूपी नेत्र कह देंगे ने भी जीव नूं अनुभव प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया। वो नेत्रां दे राही फिर परमेश्वर रूपी बाजीगर सारियां थावां ते जीव नूं उस जीव नूं नज़र आउंदा है। पर गुरु सवारे गल ये है कि अवस्था हर एक नूं प्राप्त नहीं हो सकती है। जिहदे उत्ते मालक की रहमत होवे, किरपा होवे ना, उही फिर इस अवस्था का धारनी बनता, तो उन्होंने फिर सारियां थावां ते एक परमेश्वर ही नज़र आता है, वो तो बिना दूजा कोई दिखाई नहीं दिता है। पर गल तो पूरे गुरु की लड़ ला के गल बननी है। जे आप सोचीए कि परमेश्वर की जो आश्चर्य खेड है, ये बाद सानू अनुभव हो सके, ये बाद सानू ज्ञान हो सके, तो ज्ञान लैण दे सानू गुरु के लड़ लगना पवेगा। गुरु के लड़ लगना भाव गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलना। फिर कहते इस तरह असी उस परमेश्वर नदरी पाई अपने नदरी नित नेत्रां नाल देख लवांगे, भाव सानू वो परमेश्वर दिखाई देवेगा। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा। फिर जिहड़ा सारियां थावां ते एक परमेश्वर वाहिगुरू नूं देखदा, वो जीव की पर अवस्था कैसी हुंदी है, किस तरह उन्होंने रहनी बहनी होंदी है। सतगुरु जी कहते वो सदा निर्लेप रह गुर शब्द, जिहड़े गुर शब्द नाल जुड़ जाते हैं ना, वो रहिंदे संसार दे विच ने, अपने सारे कार विहार धंधे करते हैं, दिन रात मेहनत मुशक्कत करते हैं, पर समय विचों वो समा कढ़ते हैं। जिवें गुरु का सानू हुक्म है ना कि सिखा तो दसां नोहां दी किरत करनी है, दसबंध करना है। वो दसबंध तेरा नहीं, वो दसबंध गुरु का है, ये याद रखना। वो दसबंध गुरु का है। कहते जिवें तू अपनी माया दे विचों दसबंध कढ़ लिया, इस तरह समय दे विचों भी दसबंध करना है। गुरु का सानू हुक्म है कि घट्टो घट 2.5 घंटे दिन दे विच इन्ना कु दसबंध साडा बनता है, जो आपां कढ़ना जरूरी है। जिन्हां उत्ते गुरु की किरपा है, वो सतगुरु की किरपा 5-5, 6-6 घंटे भी कढ़ते हैं, कि 8-8 घंटे बैठे रहते, बड़ी बख्शिश है मालक की। पर 2.5 घंटे तो जरूरी है घट्टो घट। जिन्ना को समा आपां कढ़ांगे तो सतगुर के दर ते प्रवान होवांगे। जिवें एक बच्चा स्कूल च पढ़ता है, उन्हें 33% नंबर लैने अति जरूरी ने। जे 33% नंबर लै लवेगा फिर पास है, पर जे नहीं गुरु सर 33% नंबर आए फेल हो जाए, एक भी नंबर घट गया ना, फिर फेल है। तो इस तरह ही जिहड़ा साडा नित दा नियम है, 2.5 घंटे सवेरे आपां 1.5 घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा नित नहीं लाना, वो हो गया। शाम को सोदर की बाणी हो गई, सोला साहब हो गया, तो इन्ना समा बैठना, तो गुरु सवारे ये फिर 33% आप पास होवांगे। नहीं जे आप इन्हां विच कुछ भी नहीं करते, फिर आप फेल ही हैं। तो सतगुरु कहते ने फिर जिहड़े इस तरह गुरु शब्द नाल जुड़ जाते ना, वो फिर संसार च विचरते ने। वो संसार च विचरदियां होइयां वो निर्लेप रहिंदे हन।
ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ ਤੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲਾਏਂਦਾ, ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਹਿ ਬਾਜੇ ਧੁਨ ਆਕਾਰਾ, ਆਪ ਬਜਾਏ ਬਜਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖੜਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨ ਭਿਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤੜ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੇ ਜਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਕਹਿਤ ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸਿਰਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ, ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐ ਪਰਬਦਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰਮੁਏ ਅਜਰਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਹਿ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਬਾਜੈ ਬਾਜੇ ਧੁਨ ਆਕਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਜਾਏ ਹੋਏ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ।
कोई नहीं बोल सकता। वो बुलांदा तां बोल रहे आपां। कई बार ऐसा होंदा कि जिन्हां दी जबान ताड़ ताड़ करके चलदी हुंदी है, उन्हां दी जबान रुक जाती है, बोलण दी शक्ति खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होंदा जिहड़े बोल नहीं सकते, उन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश होंदी है, परमेश्वर की कृपा होंदी, उन्हां को बोलण की शक्ति वापस आ जाती है। कित्थों कित्थों आई, कित्थों कित्थे गई सी पहलां, इहदे बाद परमात्मा जानदा ना, उहदियां खेडां उही जानदा है। इस करके सतगुरु कहंदे जिन्ने भी जीव कोई बोल रहा अपनी बोली शैली विच, कहंदे ये परमेश्वर दे बनाए हुए बाजे ने, बाजे बज रहे ने, अनेकां प्रकार दीयां धुनां इहदे विचों निकल रहीआं हन, आप बजाए बजावनहारा। पर कहते गल यह है कि जीव नहीं बजा रहा, बजावनहार परमेश्वर वाहिगुरु आप ही बजा रहा है। रोजाना पढ़ते आप सतगुर के बचन कि हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया, बजाया बाजा पाउन नौ द्वारे, प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया। परमात्मा दी खेडां आप ही गुरु सवारिओ जीवां नूं बजाण वाला ते जीवां नूं पैदा करन वाला ते जीवा पासों सारी कार भी आप ही कराण वाला है। किड्डी वड्डी खेड है उस वाहिगुरू दी ते जीव दी पर आदत ऐसी। हुण देखो कैसी खेड है, जिवें आपां बाजे दियां 7 सुरां ने, ये 7 सुरां असल विच ये काढ़ किहदी है? मनुख दी काढ़ है। जिहड़ियां ये जिन्ने भी हारमोनियम है जां होर साज ने, तंती साज ने, असल विच ये मनुख दे अंदर बज रहे ने, पर मनुख नूं ये सुनाई नहीं दे रहे हैं। जिन्हां ने आत्म अभ्यासियां ने अभ्यास किया, चौंकड़ा मार के बैठे, शब्द सुरती का समेल होया, फिर उन्होंने अपने अंदरों ये आवाज़ां सुनाई दित्तियां, अंदरों ये आवाज़ां सुनाई दित्तियां। इन्हों जिन्हों अनहत रूपी बाजी आख्या जाता है, तो अंदरों आवाज़ां सुनाई दित्तियां, तो फिर उन्होंने दुनिया के लोगों को मैसेज देने के लिए ये बाहर बाजा, बाहर हारमोनीयम 7 सुरां वाला तैयार कर दिता कि भाई इनू बजाना करो। जड़ियाँ अंदर बज रही ने वो जड़ियाँ आ बाहर बजा रहे हैं, असल विच तुहाडे अंदर ये बज रही ने, पर तुसीं सानू प्रगट करन दा सानू तरीका नहीं है। जिन्हां नूं फिर तरीका आ गया तो गुरु सवारिओ फिर अठे पैर उस अनहत रूपी बाजियां नूं अपने अंदरों सुनते ने, ते राग नाद विच विस्माद हो जाते हैं, तो उहदे विच ही समा जाते हैं। पर हुंदी किसे बिरले उत्ते कृपा। जे देखो गुरु नानक साहब महाराज जिस वक्त बगदाद की धरती ते पहुँचे ने, भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखना किया है, फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना, दित्ती बांग निवाज तर सुन सहान होआ जहाना, सुनमन नगरी भई देख पीर भया हैराना। तो इस भाई गुरदास जी लिखण जिथों की जो गाथा है भाई गुरदास जी ने अपनी बार च लिखना की है। हुण बगदाद का जिहड़ा गढ़ सी इन्हां हिंद मुसलमानां दा, जिथे इस्लाम वाले रहण वाले, तो उत्थों दे पीर ने जिहड़ा बाजा इतिहादक साज बजाण तो उत्थों बिल्कुल इनकार किया होया सी। धन गुरु नानक देव महाराज अमृत वेले उठे, सतगुरु जी ने जपजी साहिब का पाठ किया, फिर सतगुरु ने अलाही बाणी की धुन विच राग आधारत पातशाह ने कीर्तन किया, बाणी उच्चारण की, ते पीर दा मरीद सुनता, मरीद ते कन्ना च आवाज़ पई, जदों सुनिया पाताला पाता लख आगासा आगास, नाल गुरबाणी का कीर्तन सुनिया, अपने पीर दस्तगीर नूं जाके दसदा कि पीर जी देखो
एक मस्ताना पीर आया है, हिंदी पीर लिखना किया, हिंदी पीर कि जिन्हें लखां पता ते लखां आगाज दसे ने कि तुहाडे मत साडी मत च ये लिखिया है, तुसी कहंदे कि राग नहीं बजाना, राग बजाना मन विच विशे विकार पैदा हुंदे ने, तुसी मनाही कीती है, पर उन्हें ये गलती की है तुहाडे राज विच आके इत्थे रवाब दे नाल राग गैन किया है, ये बड़ा उपद्रव होया है, उलंघना हुई है। तो पीर ने हुक्म करता कि सारे जाके एक एक पत्थर चुको तो धन गुरु नानक दे मरण मारना करो, क्योंकि शरह की सज़ा सी एक तरह की। जो भाई मरदाने जी ने देखिया, भाई मरदाना जी देख रहे सामने गुरु सवारे ये पत्थर चुक के आ रहे ने, बहुत बड़ा काफला इकट्ठा हो गया। तो गुरु नानक साहब मरण भाई मरदाना जी कह लगे पातशाह देखो लोगों की भीड़ आ रही है। सतगुरु कह लगे भाई मरदाना जी फिक्र ना कर, बोल गुरबर अकाल सत श्री अकाल। तो सतगुरु ने बुलंद आवाज़ विच जकारा लाना कीता सी। एक तो सब तो पहला जकारे का जिहड़ा जन्म होया, जकारा लाया गया बगदाद की धरती ते लाया गया, गुरु नानक साहब महाराज ने जकारा लाया सी। ये तुहानूं कोई सवाल कर लवे कि भाई जी जो अरदास हुंदी है गुरु का खालसा जकारा गजांदा है, इस पहला जकारा कित्थे लाया सी? तो उत्तर देना है कि बगदाद की धरती ते गुरु नानक साहब महाराज ने जकारा लाया सी। जो सतगुरु ने जकारा लाया, ये सुन मन नगरी पई देख पी रहे प्याराना, वेख्या ध्यान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना, पुछिया फिर कै दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना, नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना। भाई गुरदास जी लिखते हैं, कहते दस्तगीर पीर ने सारी कोशिश कर ली, थक गया हार गया, फिर वापस मुड़ के पूछदा कि कौन हो तुसीं, तुहाडा घर बार की है, कित्थों दे रहन वाले तुसीं? ते धन गुरु नानक दे मैं उत्तर देना कीता कि मेरा नाम है नानक, दुनिया के लोग मैनू बाबे नानक दे नाम नाल जानते ने, दुनिया के लोग मैनू गुरु नानक आखते ने। ते एक जो सतगुरु कहन लगे तुसी असी राग बजाना मना कीता, तुसी साडी उलंघना कीती है, साडे राज विच आके इत्थे तुसी राग दा ज्ञान कीता है, ये बिल्कुल गलत है। गुरु नानक साहब महाराज आखन लगे पीर जी जिहड़ा ये राग है एक सोने दे भांडे दी न्याई है, राग सोने दे भांडे दी न्याई है। सोने दे भांडे विच अमृत पा के पीए ते अमृत पा के पीवांगे अमर होवांगे, जे सोने दे भांडे विच जहर पा के पीवांगे फिर कहते मनुख की मौत होवेगी, जहर पीना मनुख मरदा है। कहते असल विच जदों इसे राग दे राही असी गंदे मंदे बैन गैन करांगे, गंदे मंदे बैणा नूं सुनांगे, ये जहर पीण दी न्याई है। आत्म मौत निता प्रति फिर जीव दी हुंदी है। जदों इसे ही राग दे आधार ते आपां उस मालक दा जस सुनीए, वडियाई सुनीए, ते धन गुरु नानक दे महाराज कहंदे ने फिर वो अमृत पीण दी न्याई है, फिर पी के अमर हुंदे ने। सो गुरु सवारे कहण दा भाव है कि धन गुरु नानक दे महाराज ऐसी दलील देना कीती कि जिन्ना भी गढ़ बगदाद सी वो सारा सतगुरु गुरु नानक पात चरनां च डिग पिया दस्तगीरी पीर दे सहित। सो इस करके सतगुरु कहंदे ने जिहड़े ये बाजे गल चल रही बाजियां दी कि जिहड़े बाजे साडे अंदर वजदे ने ना, उही बाहर जिहड़े अभ्यासी हैं उन्होंने दुनिया के लोगों को फिर मैसेज दे के समझाया भाई ये बाजे अंदर भी तुहाडे वज रहे हैं, पर बजाण वाला कौन है? कहते आप बजाए बजावनहारा।
ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਵਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਪੌਣ ਵਹਿ ਇਕ ਰੰਗੀ, ਮਿਲ ਪਵਣੈ ਸਭ ਬਜਾਏਂਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੌਣ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੌਣ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੌਣ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਪਵਨ ਹੈ ਸਭ ਬਜਾਇਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪੀ ਬਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ